سامعین محترم، خواتین و حضرات، ذوالحجہ کا مہینہ بڑا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے۔ خصوصاً اس مہینے میں دو تین چیزوں کو بہت ہی نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز سیرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ آپ کی زندگی کے نمایاں پہلو ان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ تذکرہ اور ذکر خیر ہوا ہے، اور وہ بھی بطور آئیڈیل، بطور لیڈر اور بطور قائد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ ابی بن کعب کا قرآن مجید سنیں، ان کی زبانی قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اسی بات کو دہرائے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو کہ قرآن مجید سنائے؟ فرمایا، ہاں ابی، اللہ تعالیٰ نے عرش بری پہ تیرا نام لیا ہے کہ ابی کو کہو کہ قرآن مجید وہ سنائیں۔ پھر روئے جاتے ہیں اور دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، واقعتاً اللہ تعالیٰ نے میرا عرش بری پہ نام لیا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں، ابراہیم علیہ السلام کا تقریباً 30 مرتبہ ذکر اور قرآن مجید کے اکثر پاروں میں ان کا نام اور ذکر خیر آتا ہے۔ فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، اس لیے کہ ابراہیم میرے سچے نبی تھے، اللہ کے سچے پیغمبر۔ اب یہ نام لینا بڑی بات ہے کہ میں بہت سچا آدمی ہوں۔ آدمی کی زندگی کو کھنگالا جائے تو مہینے میں کوئی نہ کوئی جھوٹ بول ہی جاتا ہے۔ اب تو تاجر حضرات ہر روز جھوٹ بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر خیر کرو کہ ابراہیم دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے وفادار انسان تھے۔ تیسری جگہ فرمایا، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، وہ اکیلے آدمی نہیں تھے، دیکھنے میں ایک فرد تھے، لیکن جتنا کام پوری امت مل کے کرتی ہے اتنا کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا، قانیتا، دنیا کائنات کے برگزیدہ لوگوں میں سب سے زیادہ بڑے فرما بردار لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اگر موحد، توحید پرست، اللہ کی توحید میں غیور اور غیرت مند انسان دیکھنا ہے تو فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور قرآن مجید نے خود اپنی زبانی فرمایا، وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ فرمایا، شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ، دنیا میں سب سے اچھے اور بڑے شاکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ساتھ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنیدہ تھے۔ اور اس کے ساتھ اگلے مقام پہ فرمایا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتفاقی اور وہ چیزیں جو ہماری شریعت میں ہیں ان کی اتباع کرو۔ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمیں بھی حکم دیا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ،
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की इत्तबा करो। और साथ फरमाया वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिया नफ्सा, लोगों में से कोई बेवकूफ अहमक आदमी होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत और आपकी मिल्लत से इराद करता हुआ नजर आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इतनी अहम तरीन जिंदगी है, उनके एक एक मसले को देखें, एक एक चीज को देखें तो अंदाजा होता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में कैसे अल्लाह के दीन का, गलबा इस्लाम का, गलबा तौहीद का, शिरक के इज़ाले का कितना अहम तरीन काम किया है। ये तो हमें उनकी पूरी सीरत में इन दिनों में सिर्फ एक अमल याद रहता है, वो कौन सा? कुर्बानी का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अगर देखा जाए तो ये तो बूढ़े बुजुर्ग की जिंदगी का आखिरी अमल है। अमाल उनके बेशुमार उनके अमाल में से आखिरी अमाल में से ये एक अमल है, कुर्बानी का अमल, जो अल्लाह ताला ने आखिरी उम्र में आजमाइश की। उससे पहले जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के साथ, घर में बाप के साथ और इसी तरह हुक्मरानों के साथ पूरी फिक्री मुहाद और जंगआराई की है, वो इंसान को पता ही नहीं। ये मुख्तसर तकरीबन 2-4 मिनट में 11-12 आयात मैंने आपके सामने पेश की है, और कितनी आयात हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के मुतल्लिक, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वैसे आदमी एक आयत के ऊपर डेरे डाले तो लंबी चौड़े डेरे डाले जा सकते हैं। बड़े मुकामात पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा और जिक्र है। अब आइए दूसरी नंबर पे, कुर्बानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है उसकी अहमियत क्या है? कुर्बानी की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरान मजीद की पहली आयत फरमाए इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। नमाज बहुत अहम तरीन मामला है। सूरह कौसर में फरमाया अल्लाह ताला ने हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है, ऐ नबी नमाज अदा कीजिए। और नमाज के फौरी बाद नमाज के साथ जो तज़किरा किया है फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, जिस तरह आपने अपने रब के नाम, रब के लिए नमाज अदा करनी है, इसी तरह रब के नाम के लिए, रब के लिए आपने कुर्बानी अदा करनी है, कुर्बानी को दिबा करना है। कुरान मजीद की पहली आयत। दूसरी आयत फरमाया वली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम फइलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। फरमाया ये कुर्बानी का अमल कोई तुम्हारे ऊपर पहली दफा नहीं हमने फर्ज या सुन्नत मुअक्कदा की सूरत में लागू किया, बल्कि ये काम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है। वहां आप देखें हाबील और काबील की कुर्बानी का जो किस्सा आता है, उससे पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़िबा करना ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का काम नहीं है, उससे पहले भी ये काम चलता आया है। हाबील ने भी कुर्बानी पेश की, काबील ने भी कुर्बानी पेश की, लेकिन वहां और यहाँ का फर्क बुनियादी ये है कि वहां ऐब अल्लाह जाहिर कर देता था। जिसके पैसे हलाल नहीं है, जिसका अकीदा सही नहीं है, जिसका अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं है, जिसके दिल में इखलास नहीं है, अल्लाह उसकी कुर्बानी को लोगों के सामने जाहिर कर देता भाई इस आदमी की कुर्बानी कबूल नहीं है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी तो सारे लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह कुर्बानी को कबूल सिर्फ उन लोगों से करता है जिनके दिलों में अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर हो, कुर्बानी की वो पूरी शराइत को पूरा करते हो। और इसके साथ दूसरी आयत में फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सिर्फ इस बात में क्यों आते हो कि मेरी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए है? आप इस बात का भी अहद करो ना अल्लाह से कि मेरी नमाज और इसी तरह मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी सुबह, मेरी दोपहर, मेरी सपहर, मेरी शाम, मेरा दिन, मेरी रात, मेरी जवानी, मेरा बचपन,
माँ के गोद से लेके कब्र की लाह तक एक एक लम्हा अल्लाह के लिए है। ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से मेन बुनियादी पैगाम। हम आखिर में एक जानवर ज़िबा करके और समझते हैं कि हमने सीरत इब्राहीम और उसको अपना लिया है और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने वाले हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द। मैं अपने चेहरे को सुबह शाम दिन रात अमन खौफ सफर हदर हर जगह पे अपने चेहरे को अल्लाह का मुतीओ फरमाबरदार बनाता हूँ। ऐसे नहीं कहा गया कि कुरान मजीद में कहा इज़ क़ाला लहु रब्बुहु अस्लिम, ऐ इब्राहीम फरमा बरदार हो जाओ। फौरी जवाब दिया काला सलमतु लिरब्बिल आलमीन, कि मेरा इब्राहीम ऐसे हैं कि जिस वक्त मैंने उनको कहा फरमा बरदार हो जाओ, फौरी कहा अस्लमतु, मैं मुती हो गया। और ऐसे मुती हुए फरमाया वहीद इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जिस वक्त हमने कहा मुती हो जाओ, उन्होंने कहा कि मैं मुती हो गया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अज़माइशों के सिलसिले, अल्लाह ताला ने अज़माइशों के लंबे सिलसिले शुरू कर दिए। अब ये वाहिद बच्चे हैं जिनका वाहिद सहारा बाप होता है और बाप इस बच्चे का दुश्मन है, जानी दुश्मन। हमारे तो यकीन करें दीन का पैगाम और दीन का नाम लेते वक्त, दीन की दावत तो तबलीग करते वक्त पूरा पूरा मोहल्ला पूरा इलाका खड़ा हो जाता है। एक बंदा ना सही, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस इलाके को अल्लाह तौफीक दे ये खड़ा कर दे, दूसरा खड़ा कर दे, कोई बंदा तो साथ होता है। ये वाहिद बच्चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जिनके मुतल्लक अल्लाह ताला ने फरमाया हमने बड़े उनको कलमात के साथ आजमाया और फिर वो कामयाब नहीं हुए बल्कि A+ डिग्री के साथ कामयाब हुए हैं। फातम्माहुन, और उसके साथ आप देखें कुर्बानी के अमल में भी यही था। फलम्मा बालगा मौसाया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या अबती फलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। और फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्जिल मुहसिनीन। इब्राहीम, तूने ख्वाब को भी हकीकत बना के अमल करके लोगों के सामने पेश करके रख दिया है। तूने तो मेरे ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया है। हमें तो हुक्म मिले तो हम हुक्म की तबाह नहीं करते, चाहे कि अल्लाह हमें कोई इशारा करे कि ये तूने काम करना, उस काम को कर गुजरे, बहुत मुश्किल अमर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला बड़ा गहराई से करने की जरूरत है। और साथ फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारी चमड़ियों की ये गोश्त, उनकी खालें और उनके बाकी चीजें, उसकी क्या जरूरत है? दुनिया के बादशाह को तुम्हारे बकरों की, जानवरों की जरूरत है? दुनिया का गनी बादशाह है, लापरवाह बादशाह है, बेनियाज बादशाह है, बेऐब और बेनक्स बादशाह है, कुल कायनात का बादशाह है, सातों आसमानों और सातों जमीनों का बादशाह है। उसी का दिया हुआ है, उसी का चलाया हुआ, उसी का बनाया हुआ। वो आपके माल को आपको दे के आपसे वो लेना चाहता है? नहीं, वो तो आपके दिल के तकवे और दिल की कैफियत को देखना चाहता है। मेरा बंदा मेरा दिया हुआ माल मेरे रास्ते में कुर्बान करते वक्त क्या किस्म के जो ना वो चीजें लोगों के सामने पेश करता है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के मुतल्लिक जो हदीस हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली हदीस सुनते जाएं। 5 आयात मैंने कुर्बानी के मुतल्लिक फरमाई कि कुर्बानी ये सुन्नते मुअक्कदा। पहली बात है, बाद लोग इसको वाजिब के कबील से कहते हैं, वाजिब ना भी हो तो ऐसी सुन्नत है जिसको आम बगैर नॉर्मल हालात में छोड़ना जायज नहीं है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस सुने, फरमाया मन कान लहु सा वलम युदहि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। जिस आदमी के पास ताकत कुदरत हो, थोड़े से पैसे रुपए हो, माल हो, पैसा रुपया हो, और वो ताकत कुदरत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे
फरमाया फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, उसका हक ही नहीं बनता कि वो हमारी ईदगाह में आके नमाज पढ़े। कितने लोग ऐसे हैं जो बावजूद कुदरत और ताकत रखने के कुर्बानी नहीं करते। और इससे ज्यादा हमें ये सेकुलर तबका, हमारे तो कितने महाज खुले हुए हैं, किन लोगों से कितने कितने लड़े और कैसे कैसे जवाब दें। वो उन्होंने फलसफे बना दिए, गरीब को पालना ज्यादा बेहतर है जानवर अल्लाह के रास्ते में करने से, गरीबों की मुआमला करें, कोरोना है या बाकी मामलात है। हम कहते हैं गरीबों की मदद से हम भागते नहीं हैं। आप बेचें, फरोख्त करें, अपनी 2-2 4-4 कनाल की करनालें और कोठियां फरोख्त करें, आप बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और गाड़ियां फरोख्त करें, और बड़े बड़े हैवी किस्म के कीमती मोबाइल, इजाफी चीजें। उसके बाद अगर कुर्बानी वाला अमल आता है तो फिर इसको जाके देखें। कुर्बानी का अमल वो अपना अमल है। इस तरह अगर इसी फलसफे से, इसी अकीदे से देखा जाए तो फिर कोई आदमी ना ज़कात दे, ना कोई आदमी हज करे। 8 लाख का हज होता है और 8 लाख में 3 बच्चियों की शादी हो सकती है। ये फलसफा इंतहाई बोड़ा और भद्दा और बुरा तरीन है। इस फलसफे पे कभी भी ना जाए, ये गुमराह कुन है। और इसके साथ फरमाया दूसरी हदीस, या अय्युहन्नास इन्ना अला कुल्ली अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उदहिया। फरमाया सुन्न इब्न माजा की रिवायत, क्या लोगों, हर घर के अंदर, हर घर पर एक कुर्बानी लाजमी है। यानी अगर घर में 3-4 भाई हैं तो मिलके रह रहे हैं तो एक बंदा लाजमी कुर्बानी अदा करे। उसके घर से खून बहता हुआ लाजमी अल्लाह को दिखाई दे। फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना अव्वल मा नब्दउ बि मिन यौमिना हादा नुसल्लिया सुम्मा नरजिया फननहर फमन फ़अल हादा फ़क़द असाब सुन्नतना। कुर्बानी वाले दिन जो सबसे अहम काम, उसमें से पहला काम तरतीबवार होगा। पहला काम नमाज ईद अदा करना और खुतबा ईद बड़े इंतहाई तवज्जो से सुनना है, मुसलमानों की दुआ में शरीक होना है। उसके बाद दूसरा काम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है। तीसरा काम अपने नाखून और बाल कटवाने हैं। फरमाया जिसने ये काम कर लिए असाबा सुन्नतना, उसने हमारी सुन्नत और हमारे तरीके और हमारे दीन को पा लिया है। अब जिसके पास ताकत और वो कुर्बानी ना करे तो आप अंदाजा करें उसने क्या तरीका और क्या दीन पाया है। इसमें एक बात याद रखें कि अगर आप महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर उधार पकड़ के कुर्बानी करके अदा करके कुर्बानी के पैसे अदा कर सकते हैं तो ये भी आपके ऊपर लाजम है कि आप कुर्बानी अदा करें। बस औकात ये होता है कि हम अपनी खुशी गमी में पैसे पकड़ लेते हैं। ये भी समझे अल्लाह का एक ऐसा, अल्लाह की तरफ से फरीदा है, सुन्नत मुअक्कदा है, जिसको अदा करना बहुत अहम और नुमाया और ज़रूरी है। और एक ये भी बात याद रखें, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि हर साल कुर्बानी करता था लेकिन इस दफा इसने कुर्बानी नहीं की। लोगों को क्या कहना है, लोगों को आप खुश कर ही नहीं सकते। उनको चुल्लुआ दूध भी पिला लें, लोग खुश नहीं हो सकते इल्ला कि जिनकी फितरत सलीमा है, अच्छी नेक फितरत वाले हैं, वो तो आपकी कमजोरी को भी नेकी समझते हैं। और इसके साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन के अमर में आता है कि हम सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी किया करते थे। कुन्ना नुसम्मीनल उज़हिया बिल मदीना व कानल मुस्लिमून युसम्मीनून, कि हम सब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन मदीना में कुर्बानी किया करते थे और मुसलमान भी सारे के सारे कुर्बानी किया करते थे। और एक नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है आप 100 जानवर एक मैदान में ज़िबा करते थे। 100 जानवर हम एक करके फूले नहीं समाते, उसमें भी 2-4 हिस्सेदार होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, यकीन करें, ऊंट की लैदा, गाय की लैदा, छतरे बकरे की लैदा, दुम्बे की लैदा, जितनी नस्ल के जानवर हैं मैं उनको जानता हूँ, वो सारी नस्ल के जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं ताकि हम किसी न किसी एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में आ पाए। ऊंट लैदा, बकरा छतरा लैदा, दुम्बा लैदा, अर्ज अल्लाह ने दिया है तो करें, इसमें कौन सी हरज मजाके वाली बात है। और इसके साथ साथ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ज़ह नबी बिकबशैन अमलाहैन फराइतु वादियन कदमहु अला सिफाहिमा युसम्मी व युकब्बिर फज़बहुमा बियदी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंडे किया करते थे, और दूसरा काम यह है कि अपने हाथ से किया करते थे और अल्लाह का नाम लेके ज़िबा किया करते थे, तकबीरुल्लाह बुलंद करते हुए ज़िबा किया करते थे। जो कुर्बानी के अमल में चीज़ें ज़रूरी है वही आम सदक़े में ज़रूरी है। जो सदका जानवर ज़िबा किया जाए अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के लिए, वो हराम है, तबाही का, हलाकत का बायस और सबब है। और इसके साथ आगे देखें कुर्बानी का हकीकी मकसद क्या है, कुर्बानी का हकीकी मकसद क्या है और इसमें हिकमतें क्या है। पहली आयत कुरान मजीद में फरमाया लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हर बंदे के दिल में ये चीज़ हो कि मैं कुर्बानी का जानवर असल में अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह ने आपके दिल के तकवे को और आपके दिल के अमल को देखना है। और दूसरी आयत फरमाया वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाह व युतुज़्ज़का व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। सीधा और सच्चा और साफ और खालिस दीन ये है कि बंदा अपने दिल की कैफियत को अल्लाह के लिए ताबे कर दे, अपने तमाम उमूर को अल्लाह के ताबे कर दे, नमाज अदा करे। अब एक आदमी कुर्बानी तो अदा कर रहा है, कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर रहा है, कुर्बानी भी अहम है, लेकिन उससे पहले 5 वक्त की नमाज अहम तरीन है। वो 5 नमाजें नहीं पढ़ता, कुर्बानी कर रहा है। किस चीज की कुर्बानी है? कुर्बानी तो आपके दिल को साफ शफाफ करने के लिए है। और यहां कुर्बानी आप जानवर की दे रहे हैं और उस जानवर की जो 20, 25, 40, 50 हजार का है, आप उस नबी की कुर्बानी की सुन्नत को पूरा करने जा रहे हैं जिस नबी ने जानवर ज़िबा नहीं किया बल्कि अपने लख्त जिगर को अपने हाथों से ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो अपनी औलाद के गलों के ऊपर अपने हाथों से भी बंदा छुरी चलाने के लिए तैयार हो जाएगा। औलाद की क्या मोहब्बत है। यही वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जिन्होंने घर की कुर्बानी दी, जिन्होंने कौम की कुर्बानी दी, जिन्होंने वतन की कुर्बानी दी, जिन्होंने नस्ल की कुर्बानी दी, जिन्होंने ऐशो इशरत की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी सलाहियतों की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी। हम एक जानवर ज़िबा करके और बाकी सारी कुर्बानी उसी तरह रखते हैं, समझते कि हमने अल्लाह के रास्ते में अपना सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर दिया है। खुदारा कुर्बानी को समझो, ये कुर्बानी बड़ा अहम पैगाम देती है। और हदीसों में आता है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम अमवालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ, तुम्हारे अमवाल की तरफ, तुम्हारे महंगे जानवरों की तरफ, तुम्हारे पले हुए दुम्बे और जानवर ऊंट गाय की तरफ नहीं देखता। अल्लाह उस दिल की कैफियत को देखता है और अमल की कबूलियत में उस दिल के तकवे और इखलास को देखता है। फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। कुर्बानी तो असल में दिल के तकवे का नाम है। अगर इस चीज से खाली हुए तो समझ लो कि 70-80 हजार का जानवर हो भी गया, माल भी गया, सब कुछ गया, कबूल भी। दूसरी हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा काना लहु खालिसा। अल्लाह सिर्फ खालिस अमल को कबूल करता है। और खालिस की सबसे बड़ी दलील यह है वक्त भी अभी बदू, जो खालिसतन उसकी रज़ा और उसको खुश करने के लिए किया जाए। हमारे यहाँ तो यह है कि जानवर पे बकायदा गोश्त उसका वजन किया जाता है, उसकी कीमत को नुमाया किया जाता है, उसकी शक्ल सूरत को सोशल मीडिया पे नुमाया किया जाता है और उसके तज़किरे किए जाते हैं। हत्ता के 2-2 साल गुजरने के बाद भी उनकी सेल्फियाँ ली जाती, सेल्फियाँ उनकी चलाई जाती हैं। और अब तो बकायदा फितना इतना आ गया कि सोशल मीडिया में बकायदा ये पैगाम दिया जाता है आप अपने जानवर के साथ सेल्फी लेके हमें सेंड करें, हम टीवी चैनल में उसे चलाएंगे।
दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ फितनों की आग है। और आग और कांटों में चलने वाला आदमी बेहतियात नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा मोहतात होना चाहिए। कांटा लगा तो वो भी खून निकालेगा, आग लगी तो वो भी जला के राख कर देगी। ये आपके ईमान के कातिल हैं जो जगह जगह चौक चरस्ते में बैठे हैं। अपने ईमान की हिफाजत करो और अल्लाह के रास्ते में ये जानवर जब ज़िबा करो 2-4 दिन के अंदर अपने नफ्स को कंट्रोल करके, भाई कितने का, ये मेरे रब का मामला, कितने का रब का मामला कैसा है, बस अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। कुछ भी ना हो, कुर्बानी ज़िबा करते वक्त ऊपर खड़े हो गए, या अल्लाह 10 दिन में जो गलती हुई सो हुई, अब अपने चेहरे और दिल को तेरे लिए मुतवज्जे करता हूँ, इसको खालिसतन अपने रास्ते में कबूल फरमा। ना ज़िबा करते वक्त सेल्फी लें, ना ज़िबा करते वक्त वीडियो बनाएं। आपका वीडियो बनाना जिस वक्त ज़िबा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के गैर को कुछ दिखाना चाहते हैं, अल्लाह के गैर को दिखाना चाहते हैं। जिसने आपको टके रुपए की कोई शाबाश भी नहीं देनी, उसने आपका जानवर देख के पता ही क्या कहना है, इससे अच्छा और इससे मोटा ताजा उस जगह भी हुआ है। आपकी तो गई ना सारी वीडियो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इससे अच्छा लिया है। दुनिया में दुनिया के मुकाबले में कोई किसी से जीत सकता है, मुश्किल है। इसके साथ फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, माल पकीज़ा खर्च करो। लोग हराम की कमाई जेब में डाल के बाजार में हलाल तलाश करने की कोशिश करते हैं। जेब में हराम माल है और तलाश हलाल और पकीज़ा चीज की है। हलाल कमाओ, फिर उसके बाद हलाल जगह पे लगाओ। हलाल पाक साफ माल होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ज़ुल्हज्जा का मसला है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्यामुल अफजल व अय्यामुद दुनिया अय्यामुल अशर, दुनिया के अफजल तरीन दिन वो ये 10 दिन ज़ुल्हज्जा के 10 दिन हैं। इसको आप वैसे ना गुजारें, अल्लाह की इबादत में, जिक्र अज़कार में, नवाफल में, कुरान की तिलावत में, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व क़रात में, नेक अमाल करने की सूरत में गुजारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, कोई अमल ऐसा नहीं कि जो ज़िलहज्जा में अमल किया गया उसके मुकाबले में कोई भी अमल इसकी अहमियत के बराबर हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इस अमल के बराबर नहीं है? फरमाया बलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया हुआ अमल भी इस अमल के मुकाबले में बराबर नहीं है। हाँ, वो मर्द मुजाहिद मर्द होर जो खालिसतन अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह करे और अपने घोड़े सादो सामान के साथ निकले, ना खुद वापस आए, ना उसका घोड़ा वापस आए, ना उसका कोई सामान वापस आए, फिर भी सोचा जा सकता है, लेकिन इस अमल के बराबर नहीं हो सकता जो आदमी इन दिनों में अमाल करता है। मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है कि रातों में अफजल तरीन रातें रमजान मुबारक की आखिरी अशरे की रातें हैं, ताक रात की वजह से। दिनों में अफजल तरीन दिन, अफजल तरीन हफ्ता और 10 दिन वो यही ज़ुल्हज्जा के दिन है। इसमें नौजवान अगर रोज़ा रखना चाहते हो रख सकते हो, लाजमन रखें। ये अल्लाह ने रोज़े का बड़ा सवाल अता किया है, खुसूसन अगले जुमे 1 दिन के रोज़े से 2 सालों का खाता साफ होगा। 2 सालों का खाता साफ होगा, पिछले साल का भी और अगले साल का भी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, श्याम यौम अरफा, अरफा के दिन का जो आदमी रोज़ा रखता है, उस एक रोज़े के बदले अल्लाह ताला क्या करेगा, युकफ्फिरु सनतल मादिया वल बाकिया, वो 1 साल पिछले भी अल्लाह गुनाह माफ कर देगा और आने वाले 1 साल के भी अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देगा।
एक दिन के रोजे से इतना बड़ा इनाम और सवाब मेरे रब के सिवा कोई बंदा नहीं दे सकता। जब पिछले साल के भी सारे गुनाह माफ और आइंदा आने वाले भी गुनाह माफ और साफ कर हो जाएंगे। तो ये भी करें। बाकी कुर्बानी के अहकाम मसाइल, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आदमी जानवर उसके ऐब को तो बड़ा देखता है, जानवर के लंगड़ेपन को देखता है, जानवर के ऐब को, कमजोर लागरपन को देखता है, जानवर के कान और नाक को देखता है, जानवर के धुंधे और गैर धुंधे होने को देखता है। यही बड़ा समझदार आदमी जो मंडी में इधर उधर बड़ा चुकन्ना चुनक्का होके सब जानवरों के ऐब देख के लाता है, लेकिन ये अपनी जात के बारे में इतना सादा बन जाता है। जानवर के ऐब देखने तो उसे याद रहे हैं, लेकिन अपनी जात के ऐब देखने उसे याद नहीं रहे। जानवर के ऐब देख देख के बड़ा पहचानता है, लेकिन अपनी जात को भूल जाता है। अल्लाह जानवर के ऐब और नक्स को तो हो सकता है माफ़ कर दे, लेकिन जानवर ज़िबा करने वाले के यूब अगर हुए ना तो फिर जानवर भी गया और जानवर ज़िबा करने वाला भी गया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन 10 दिनों की कदर कीमत जान के अमल करने की तौफीक अता फरमाए और यौम अरफा का रोज़ा खुद भी रखने की और अपने अहल व यार और दीगर उम्मत मुस्लिमा बहन भाइयों को, अज़ीज़ व अक़रबा को रखवाने की, नशर इशात और तबलीग करने की और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वलिल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।